Good evening, everyone. We waited for this day when notification has been released, and we are talking about the CSP Civil Services Prelims Notification 2024. You see that the number of seats are 1056. We will cover the strategy to succeed in UPSC. Now, for this UPSC examination, success means the same thing as it is for other walks of life. We will specifically cover prelims strategy. How to cover prelims smartly. Because see what has happened in the recent years, especially since the year of 2015 till last year 2023. So many new coachings have emerged who are dissecting the examination into various segments, various fragments, which is actually making things very complex. Sorry. So we will simplify things, understand the overall scenario. This examination requires you to do certain hard work. We'll go through that. But first and foremost, understand that cracking UPSC examination is same as succeeding in life. As we say, nothing succeeds like success. So if you have the habit of success, you will have the habit of succeeding in UPSC as well. I was looking at the background of one UPSC interview aspirant who appeared for 3 attempts. In all 3 attempts, he appeared for interview. In the last interview, he has already got IPS. He is trying to improve his rank so that he can get IAS. Now the question is, what is unique in these candidates who cracked the exam in very first attempt? Is there any secret sauce, secret mantra of success? The answer is yes. Most of the people will tell you that this exam is very dicey. They will tell you that it is very, but the answer is that it is not dicey. The only thing is that lots of unnecessary clutter, confusion has been created. इतना सारा धुआं फैला दिया है कि रियल इश्यूज नहीं दिखते हैं. And who are responsible for this? The existing coaching institutions, one. Secondly, the aspirants, both. देखो हम समझेंगे कैसे हो रहा है. जो existing coachings हैं, अभी आप देखेंगे जो recent coachings भी आ रहे हैं मार्केट में, they are making some one person, एक आदमी को, एक औरत को, किसी को भी वो इस तरह से भगवान बना के दिखा रहे हैं. एक टीचर को they are showing as if they are God. अब ये क्या होता है कि one person cannot solve all your problems. बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए कोचिंग्स का? टू एम्पावर यू, टू गिव योर स्ट्रेटेजीज, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स. वो चीज मिसिंग है बिल्कुल ही. ये चीज मिसिंग है. उसके बाद एस्पिरेंट्स की बात करते हैं. ज्यादातर लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी, दे बिलोंग टू योर मिडिल क्लास. अब ये जो मिडिल क्लास का आदमी है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास में, हायर मिडिल क्लास के भी करते हैं, मिडिल क्लास ही करता है जनरली. कुछ लोग मोटिवेटेड, डिपेंडिंग कि वो हायर क्लास से हैं, कुछ मोटिवेशन उनका अलग सा होता है तो वो भी करते हैं, बट लार्जली इट इज लोअर मिडिल क्लास विच इज इन दिस ट्रैप ऑफ द एग्जामिनेशन. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अभी आपको क्या दिखाते हैं? 12th फेल मूवी आपको दिखाते हैं, टीवीएफ का वो एस्पिरेंट वाला. यू गेट मोटिवेटेड कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ, एस्पिरेंट्स. तो यहाँ पे मनोज क्लियर द एग्जाम. यहाँ पे भी
जो आपका फाइनली आईएएस बनता है 6th अटेम्प्ट में, ही क्लियर द एग्जाम, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु डिड नॉट क्लियर द एग्जाम? तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, दे ऑल्सो थिंक एट दिस इशू फ्रॉम द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसको एड्रेस करेंगे अभी। इमोशनल इशू है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं कि एक दिन तो सक्सेस मिल जाएगी। द प्रॉब्लम इज दैट ये एग्जामिनेशन बहुत डाइसी है। ये 10 लाख लोग जो है 10 लाख दे फिल द फॉर्म, आउट ऑफ दैट 1000 विल क्लियर द एग्जामिनेशन। रफली यही रेशियो है। ये सारे जितने फॉर्म फिल कर रहे हैं दे आर नॉट सिंसियर एस्पिरेंट, वी नो, बट स्टिल ये फॉर्म तो फिल कर रहे हैं ना। अब ये आप देखो, ये वाला रेशियो ना 10 लाख कितने होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज दैट सी दिस रेशियो, अगर हम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करें तो 0.1% आता है ये। अगर 10 लाख की जगह जो अपीयर होते हैं एग्जाम में 5 लाख वो कर दे तो 0.2 हो जाए, विच इज वेरी वेरी लेस। 0.1% का मतलब आप समझते हो? 0.1% का मतलब ये है कि अगर 1000 पीपल आर स्टैंडिंग समवेयर, उसमें से सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा, 999 विल बी रिजेक्टेड। अब क्या है यहाँ पे, ये प्योर लक बोल सकते हैं, प्योर लक। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज साइंस बिहाइंड इट। एक तो कैपेबिलिटी की बात है। पहली चीज देखते हैं कि हाउ मेनी आर सिंसियर एस्पिरेंट्स। अगर आप टोटल एनालिसिस, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी लगा, मैंने पूरा डेटा एनालाइज किया, तो फिर मैं आया हूँ यहाँ पर। 50,000 लोग वी कैन से इन 1 ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आर सिंसियर एस्पिरेंट्स। ये जो सिंसियर एस्पिरेंट्स है 50,000, इसमें से कितनों का हो रहा है प्रीलिम्स के स्टेज पे? प्रीलिम्स के स्टेज पे आपका इस बार भी 1000 सीट्स है, रफली 14,000 15,000 विल बी सिलेक्टेड। तो 3-4 में से एक तो हो जाएगा, ये सिंसियर वाले में से एक, 2-3 नहीं होंगे, जस्ट रफ एस्टिमेट। अब ये सिंसियर एस्पिरेंट्स कहाँ हैं? आर दे ओनली इन ओल्ड राजेंद्र नगर? आर दे ओनली गोइंग टू वन और द अदर कोचिंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर? अगेन द आंसर इज नो। They are spread across the country thanks to online learning, thanks to edtech platforms. अब ये सारे जगह पे है, ऐसा मत सोचना कि ये लोग हैं जो है। अब प्रीलिम्स में इतनी ज़्यादा जनता सेलेक्ट ही होते हैं ना, 15,000 इज अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। तो आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे, वहाँ पे दिख जाएंगे, सभी दिख जाएंगे आपको। अब आते हैं हम ये कि कहाँ पे कैच है, कहाँ प्रॉब्लम है। देखो, तैयारी करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। दीज आर सिंसियर एस्पिरेंट्स। अब इसमें अगर आ जाए कि सिंसियर के साथ साथ केपेबल कितने हैं, तो वो आप देखोगे तो 25-30,000 ही मिलेंगे। 25,000 ये केपेबल भी है और सिंसियर भी, इसी में से सिलेक्शन हो जाता है। ये 25 में से 1000 का हो जाता है, तो 1/25, 25 में से एक सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे रेशियो फिर भी थोड़ा समझ में आता है। पहले तो कैपेबिलिटी का जजमेंट, अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो आप उस कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, तो आप इस ब्रैकेट में रहोगे ना, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है स्ट्रेटजी की। वी विल कवर द स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी में क्या है, देखो 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है। 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है। जो ब्रॉड व्यू पॉइंट है न्यूरो साइंस ऑफ सक्सेस, वो हम कवर करेंगे। पहले आपको इस एग्जाम का बता देता हूं मैं। साइंटिफिक एनालिसिस, मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेट होकर के आप पहाड़ तोड़ दोगे? द थिंग इज दैट इतना मोटिवेशन की जरूरत है भी नहीं। लोग क्या कर रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, एसएम, यू विल सी ऑन एसएम, कोई एक आदमी, एक टीचर बोल रहा है कि मैं 18 साल का था, मेरे ऊपर 18 केस थे, 18 ईयर्स 18 केसेस। कोई फाउंडर टीचर, शी इज सेइंग दैट आई लेफ्ट आईएएस टू टीच। ये जो है ना, ये अप्रोच, ये चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। द रियलिटी इज दैट एवरीबडी हियर वांट्स नेम, फेम एंड मनी। यही है लाइफ की डेफिनेशन। इवन इफ यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू विल हैव एनफ चांसेस टू सर्व द कंट्री, एनफ चांसेस टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री। लेकिन वो भी आपके इस तरह से नहीं होंगे, इतने रेस्ट्रिक्टेड माहौल में काम करोगे आप कि बहुत शायद इक्का दुक्का मौका मिले जिसमें कि कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक आध आदमी की ज़िंदगी में कुछ सुधार हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट बनेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। देयर आर नॉट वन टू बट एन नंबर ऑफ ऑल्टरनेट करियर्स। तो मेरा क्या सुझाव है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये लोगों के चक्कर में मत पड़ो। दोज हु आर सेइंग दैट यू शुड हैव ओनली एंड ओनली प्लान ए, प्लान बी नहीं होना चाहिए, ये जो लोग हैं ना, आप पहले तो सबसे पहले इन लोगों को बोलो कि आप मुंह बंद रखो। You must have a plan B and this plan B should be very very strong कि ये नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे और कब तक नहीं होगा। How many attempts you should go for? 1 से 2 अटेम्प्ट। Hear it out very very clearly, 1 से 2 अटेम्प्ट, इससे ज़्यादा नहीं। आप फिर प्लान बी को काम करना शुरू कर दो। यहाँ पे आप काम करने के बाद अगर आपको लगे फिर से कि यार सही है, जिंदगी में ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आई एम रियली फीलिंग सम वॉइड, तो फिर आप कम बैक में एक कर सकते हो फिर से वन सिंसियर अटेम्प्ट, लीव असाइड एवरीथिंग इन केस यू फील लाइक दैट। लार्जली जनरली स्पीकिंग सबसे अच्छा होगा कि प्लान ए को सक्सीड हो जाए और उसके लिए एक साइंस चाहिए होगा, उसके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होगी आपको। अब क्या होता है, देखो आप क्या करते हो, आपको मैंने बोला मोटिवेट तो हो गए, मोटिवेशन और प्लानिंग दोनों की जरूरत होती है। हमारा जो सक्सेस है ना वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। वन इज योर इमोशन, जो कि आपको मोटिवेशन एक्चुअली देता है, इमोशनल एनर्जी ऑफ मोटिवेशन। और दूसरी चीज होती है आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग। आप देखेंगे वन रैंकर इज देयर, लंगिमा तिवारी, लंगिमा तिवारी, आई फॉरगॉट हर एग्जैक्ट रैंक क्या है, बट अगर आप देखेंगे उनका जो अप्रोच है, यंग या वेरी यंग, शी वाज जस्ट परस्यूइंग हर इंजीनियरिंग, उसके बाद में हो गया, इंजीनियरिंग भी पास हुए और यहाँ भी हो गया। ड्यूरिंग माई टाइम ऑफ प्रिपरेशन देयर वाज वन लेडी हु क्रैक्ड इंडियन फॉरेन सर्विस, शी वाज आल्सो डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम DCE, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये जो लोग हैं ना, इनके साथ क्या एक एडवांटेज है, व्हाट दे आर डूइंग। अभी देखो इस वाले पार्ट में वो बहुत स्ट्रांग है, इमोशन के साथ साथ ना उनका प्लानिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है, प्लान किया हुआ है। कब से प्लान किया है, उन लोगों ने काफी एडवांस में प्लानिंग की हुई है। ये जो इमोशन है ये तो आपको एनर्जी बढ़ाने के लिए, यू मस्ट डेडिकेटेड, कमिटेड, डिसिप्लिन, ये सब चीजें तो आएंगी देखो, लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होगा ना। देखो 2 चीजें होती है हमारे दिमाग में, एक होता है लिम्बिक सिस्टम और एक होता है PFC। PFC को बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम मतलब आपको मिला किक, किक क्या मिला भैया, किक ये मिला, आपने देखा सबके अलग अलग मोटिवेशन होते हैं, आपने देखा कि LBS की ट्रेनिंग चल रही है, फाउंडेशन ट्रेनिंग चल रही है, या NPA जैसे पुलिस एकेडमी, NPA सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग चल रही है, वहां पे आपने देखा इंस्टाग्राम पर रील्स, रील्स देखे आपने किसके, आशना चौधरी के। आपको लगा यार बिल्कुल सही बात है, ब्यूटी विद ब्रेन, जब ये सारा बताया जाए हम लोग, ब्यूटी विद ब्रेन एंड ऑल, शी इज डूइंग वंडरफुल इन हर लाइफ, डेफिनेटली शी इज अ वेरी टैलेंटेड लेडी एंड शी हैज क्रैक्ड द एग्जामिनेशन इन 3rd अटेम्प्ट आई सपोज। एंड वो जैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको वो लाइफ अचीव करनी है, दैट्स अ गुड थिंग, यू मस्ट बी इंस्पायर्ड, यू मस्ट एस्पायर टू गेट दैट लाइफ। ये तो हो गया किक वाली बात कि हमें वहां पहुंचना है। कुछ और के मोटिवेशन अलग होते हैं। नवनीत सिकेरा, earlier a very senior IPS officer, there are people who motivate you like Avanish Saran, there are people who are doing wonderful job like Armstrong Palmer, ये लोगों से भी लोग मोटिवेट होते हैं। अभी the lady Ashna Chaudhary who is in IPS, once she enters the job she may be doing wonderful things, आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, कमिंग जनरेशन उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, बट only inspiration will not help. The thing is that you have to give focus to the planning part. And plan कैसे करेंगे हम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा इन्वॉल्व होता है। आपको सक्सेस तब मिलती है जब ये दोनों कन्वर्ज करें। इसका मतलब क्या है, सीधी सादी बात है कि आप मोटिवेट तो हो गए, बहुत सारे ख्वाब देख लिए आपने, लेकिन आपने उसको ऑपरेशनलाइज किया कि नहीं। और ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने गोल सेट करें
और गोल सेट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले एक बिगर पिक्चर तो समझ में आए, तो आप अपनी स्ट्रेटजी तो बनाओ। स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, आप फॉलो तो करो एक बार ढंग से। आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, यू जस्ट एंटर दिस प्लेस, ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर, यहाँ पे आप आ गए, बस पूरा अपना बैग बस्ता सब कुछ उठाया, आपके साथ में कोई छोड़ने आया, आपने रूम ले लिया, ठीक है। आपने रूम लिया, उसके बाद क्या किया, वहाँ पे इन सब चीज़ों में लगे, हमारा खाने का, सोने का, लाइब्रेरी का, वो सारा अरेंजमेंट आपने कर लिया। फिर आप चले गए, आपने देखा था कोचिंग के बहुत सारे ऐड हो रहे थे, देयर आर सो मेनी कोचिंग्स, देयर so many coachings and number, like there are restaurants in Connaught Place, in your Chanakyapuri, likewise there are coaching institutions in Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar as well. You are inspired by the master, the person who is teaching there, जिसके बहुत सारे Instagram पे रील आ रहे हैं, अफसर बेटा, अफसर बिटिया, अफसर मैडम, अफसर सर, so many things are happening. You are inspired and you enter the coaching institution. आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे, लाइक द काउंसलर, यू शुड आस्क द काउंसलर क्या प्लान है आपका, व्हाट इज योर डेडलाइन, कब तक कोर्स खत्म कर देंगे, एग्जाम अगले वाला देना है तो उससे 6 महीने पहले हम खत्म कर देंगे सब कुछ या नहीं, हाउ मच टाइम विल आई गेट फॉर रिविजन, हाउ मेनी कोर्सेस आई शुड ज्वाइन एट वन गो, क्या करना चाहिए हमें। द आंसर यू विल गेट इज, ज़्यादातर केसेस में कि नहीं नहीं हमारा ये प्लान है, आपको एडमिशन लेना है तो लो, अदरवाइज गो, बिकॉज यू डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, योर प्लानिंग इज नॉट देयर, तो कोई फायदा नहीं होता है। As I told you about Langema Tiwari, like Ashna Chaudhary, there are many aspirants who have prepared for the exam on their own. अपने से ही प्रिपेयर किया, इनकी रैंक आई, the answer is yes. क्यों आई? Because of the strategy they were following. Hard work, yes, you will find both these guys hard working. ये सारे हार्ड वर्किंग है, तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले तो क्वेश्चंस पूछने चाहिए आपके, राइट। स्ट्रेटजी आपने खुद की बनाई, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले देखो आप इन्वर्टेड तरीके से, व्हाट इज द स्टेजेस क्या है, प्रीलिम्स है सबसे पहले, मेन है, इंटरव्यू है, ये आपने देखा, प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। हाउ शुड यू एक्चुअली प्रिपेयर, ये ऐसे नहीं होकर के, ये इस तरह से होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड एंड मस्ट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी करो, कैसे? इंटरव्यू इन यूपीएससी इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है आपका। अभी जो लोग इंटरव्यू दे के आए हैं, आप उनसे पूछोगे, मेरे तो जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, आस्क देम हाउ वाज द एक्सपीरियंस। As I have been to the interview, I realized that how many mocks you give, that doesn't matter. That experience of interview is altogether different. सब कुछ fresh होता है वहाँ पे, और आपका real personality का judgment वहाँ पे हो जाता है 15, 20, 25 मिनट में। And there are 5 members. They ask you several questions from different walks of life. They gauge your personality. How many answers you give correct is not going to be the criteria on which you will get marks. The criteria will be how consistent you have been, how clear you have been, how confident you have been. तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, काम, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और क्लियर। ट्रिपल सी अप्रोच, काम, कॉन्फिडेंट, क्लियर। अगर आप रिलैक्स्ड हो, चाहे आपने आंसर गलत दिया, सही दिया या नहीं दे पाए, जो भी है, रिलैक्स्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, मतलब आंसर गलत देने से आपका आत्मविश्वास नहीं हिलना चाहिए। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। क्योंकि देखो, जो बाहर की दुनिया है, स्पेशली इफ यू गो इनटू द ब्यूरोक्रेसी और एनी अदर चैलेंजिंग जॉब, वहाँ पे एवरीबडी विल बी रेजिंग फिंगर्स अगेंस्ट यू। सो यू मस्ट हैव फुल फेथ इन योर एबिलिटीज और क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये नहीं कि
आपको किसी ने कोई व्यू पॉइंट बोला, आप उस व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब कर दिया, आपका अपना व्यू पॉइंट है जो कि आपने पूरे सारे अलग अलग ओपिनियन एंगल को सबज्यूम करके उसको एनालाइज करके फाइनली कुछ चीज़ों पे आप जूम डाउन किया है आपने। अगर आप दूसरों का व्यू पॉइंट लोगे तो आप क्लियर नहीं होगे। ये बात रही इंटरव्यू की। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं, अगर हम काम कॉन्फिडेंट क्लियर रहेंगे फर्स्ट डे से, देन यू विल गेट द गोल इजली। तो ये पहले अपने एटीट्यूड में लाना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट वर्क ऑन योर एटीट्यूड। जैसे मैं बोलता हूँ कि देखो, एप्टीट्यूड तो डेवलप हो जाता है, ट्रेनिंग जो अभी यूपीएससी की पूरी ट्रेनिंग है, जैसे कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, वो तो आपको ट्रेन करेगा। दैट इज योर ट्रेनिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड। बट व्हाट अबाउट द एटीट्यूड? वंस you have the attitude, the aptitude can be built। एटीट्यूड से एप्टीट्यूड की तरफ जा सकते हैं, एप्टीट्यूड से एटीट्यूड की तरफ नहीं जा सकते। एटीट्यूड मस्ट बी देयर, पॉजिटिव। जब हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या मतलब है इसका? लर्न फ्रॉम एवरी एडवर्सिटी, लर्न फ्रॉम एवरी फॉल बैक, लर्न फ्रॉम एवरी डिफीट। ये हो गया आपका पॉजिटिव। इंटरप्रेट ईच एंड एवरी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इफ यू इंटरप्रेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, आपको एक तो क्या होगा कि द हॉर्मोन्स which are there in your body, they will act which will make you happy, so you will be prepared to take on any adversity। सबसे बड़ी बात तो ये है। जो लोग बोलते हैं कि अरे ये एग्जाम खराब चला गया, आज हमारे लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई थी, मैं जहाँ जिस रूम में रह रहा था ओल्ड राजनगर में, मुखर्जी नगर में, मेरा पेपर खराब हो गया। आई हैव सीन अ पर्सन हु वाज स्टेइंग इन अ वेरी स्मॉल रूम। अब उसको उसमें भी लैंडलॉर्ड से लड़ाई होगी, मेंस लिख रहा था ये, राइटिंग मेन एग्जामिनेशन। उसको उसने किचन में छोड़ दिया, किचन में ही रहो, तो ये रूम छोड़ दो। द पर्सन स्टेड इन अ वेरी स्मॉल रूम, किचन साइज रूम, और वहां से भी क्रैक किया। बिकॉज यू नो दैट मेंटल टफनेस, अभी अभी का जो जनरेशन है जेन जी, दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दे आर ऑलवेज सेइंग ये गलत वो गलत, ये यहाँ से ट्रेन नहीं मिल रहा, यहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही, मेरा फोन खराब हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप मेकिंग कंप्लेंट्स, start facing issues, start solving it, have proper confidence in your abilities, and don't and never say die, never give up, never ever give up. You are focused, determined, you have a plan, some flexibility is there, your plan may or may not work out, don't worry, the life will remain as it is। ये आपके अंदर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हैप्पी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, सक्सेस से आपको हैप्पीनेस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन्स। अब आते हैं, बात हम करते हैं कि इंटरव्यू स्टेज के बाद मेंस और प्रीलिम्स का इंटरव्यू, प्रीलिम्स का स्टेज जो है वो आता है। अब देखो, मेन एग्जामिनेशन की तैयारी एक्चुअली पहले होनी चाहिए, तभी प्रीलिम्स की तैयारी होती है। इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। मेन से प्रीलिम्स की तरफ जाते हैं, प्रीलिम्स से मेन की तरफ आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया तो मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी वास्ट है, और मेन एग्जामिनेशन में लिखना पड़ता है। यहाँ तो आपको सिर्फ ऑप्ट करना है, 4 में से एक आंसर करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है। लाइकवाइज, और पेयर बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर, सी वेदर इट इज पेयर बेस्ड, 2 पेयर आए, 3 पेयर आए, कुछ भी आए, एंड यूपीएससी विल गिव यू सरप्राइज, इस साल कुछ और आएगा। उससे मतलब नहीं होता है, यू कैन नॉट गो विद द सेट मेंटालिटी। आपका नॉलेज परफेक्ट है ना, सिंपल याद रखना, नॉलेज परफेक्ट है, और आप में एक एबिलिटी है फोकस करने की। फोकस की एबिलिटी क्या होती है? यू हैव द एबिलिटी टू चूज द राइट आंसर फ्रॉम अमंग दोज इक्वली सीमिंगली राइट आंसर्स। सीमिंगली करेक्ट आंसर से आप सबसे करेक्ट आंसर निकाल पाते हो, तो आप फोकस्ड हो। ये फोकस कैसे इंक्रीज होगा, इसकी भी टेक्निक है, ठीक है? तो हम इसको करेंगे। तो मेन एग्जामिनेशन पहले होना चाहिए। अब आते हैं बात की, मेन एग्जामिनेशन में जो जितना सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, एक तो आपका ऑप्शनल है, उसके बाद आपका एसए है, फिर आपका आ रहा है एथिक्स का पेपर, जिसका जीएस पेपर 4 हम बोलते हैं। ये ऑप्शनल के पेपर के 500 नंबर है। ये दोनों के पेपर के एसए और एथिक्स मिला के इसके भी 250 + 250, यू हैव दिस 500 मार्क्स। 500 + 500 1000 मार्क्स का गेम है ये।
ये मैं स्पेशली और अलग से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज योर मेंस मार्क्स एंड योर रैंक्स will be defined and decided primarily by these three factors: optional, essay, ethics. ठीक है, इस पे फोकस करना है। अब आपको आते हुए मैं बताता हूँ कि बाकी पेपर का क्या होगा। जीएस का पेपर 1 2 3 और 4 तो हमने ले लिया, एसए भी हमने ले लिया और ऑप्शनल भी हमने ले लिया। ये तीनों को हमने कवर कर लिया बहुत ही तगड़े तरीके से। मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 मार्क्स का ये 1000 के जगह पे आपको 600 आ जाएंगे इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एज आई सजेस्ट। I'm not saying that others don't suggest say so or others don't have this capacity, but what I have seen, largely speaking, most of the coachings will not give you a strategy. They will just keep on telling you the content, and if you have the content only, you will not be able to write answers in paper 4 ethics or essay. ऑप्शनल में भी मार्क्स कम हो जाते हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर इन ऑप्शनल तो सिलेक्शन तो देखो मुश्किल ही है। कहाँ से आएंगे इतने सारे मार्क्स? जीएस में जनरली उतने सारे मार्क्स आ नहीं सकते बिकॉज द सिलेबस इटसेल्फ इज क्वाइट वास्ट। अब जो आपकी तैयारी प्रीलिम्स के दौरान करते हो उसमें से आपका जीएस पेपर 1 के बहुत सारे पार्ट आप पढ़ लेते हो। पेपर 2 और पेपर 3 के जो है सिलेबस जीएस के मेन एग्जामिनेशन की, ये दो लार्जली जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं जो हम ऑटोमेटिकली पढ़ते ही हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे ओरिएंट करो कि इस पे फोकस करना है, ऑप्शनल ऐसे एथिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा, दैट टू कैसे इंटरलिंकेज वाला अभी मैं बताऊंगा आगे। और GS1 की प्रिपरेशन ज़्यादातर की हुई है, थोड़े पोर्शंस वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका सोशल इश्यूज ये बचता है थोड़ा बहुत, लार्जली यू हैव डन। तो ये जीएस पेपर 1 इज टेकन केयर ऑफ। पेपर 2 पेपर 3 लार्जली करंट अफेयर्स होता है, वो आप कर सकते हो। कम टाइम में इनको निपटाना है, ज़्यादा फोकस इस पे करना है। राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, हैंड राइटिंग शुड बी ब्यूटीफुल, यू शुड हैव वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, फैक्ट्स, फिगर्स, एवरीथिंग। कंटेंट तो देना ही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी, बट आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ एक स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखे, और द फ्लो ऑफ द आंसर शुड बी सच दैट द एग्जामिनर इज कंप्लीटली एंग्रोस्ड इन योर आंसर। तो आपके मार्क्स यहाँ पे आएंगे, आप इजीली आईएएस बन जाओगे। अब आते हैं, बात हम करते हैं कि मेन एग्जामिनेशन में चेक क्या होता है। इंटरव्यू में हमने क्या बोला था? इंटरव्यू में वी टोल्ड यू दैट CQ, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और काम, रिलैक्स। मेन एग्जामिनेशन में जो चीज चेक होती है आपकी, वो चेक होती है जनरेटिविटी। देखो ये जनरेटिविटी क्या है? जनरेटिविटी मीन्स हाउ केपेबल आर यू ऑफ जनरेटिंग पॉइंट्स विद द कंटेंट विच यू हैव। जो कंटेंट आपके पास है उससे कितने पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हो ऑन द स्पॉट इन द एग्जामिनेशन। अब हर आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं कि इतने सारे पेपर, जीएस के 4 पेपर हो गए आपके, एसए का पेपर हो गया, उसके बाद में ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए, इतने सारे पेपर में इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से जनरेट करेंगे हम? तो ऑप्शनल में जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं जो कंपलसरी होते हैं 8 में से, आप देखोगे पेपर तो समझ में आएगा। ये 5 क्वेश्चन में से आपके 4 तो तैयार होने चाहिए, बिल्कुल सॉलिड, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड विथ योरसेल्फ। जब क्वेश्चन देखेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे, पॉइंट्स तैयार है, पूरा का पूरा तैयारी है, आपके आ गए यहाँ पे। लाइकवाइज फॉर एसए एथिक्स देयर आर स्ट्रेटजीज। एथिक्स पेपर में एथिकल कॉम्पिटेंस चेक होता है, एसए के पेपर में आपकी स्ट्रक्चर, फ्लो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स चेक होता है, आपका वोकैबुलरी भी चेक होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, पर्सुएसिव स्किल्स, ये सारे चेक होते हैं। तो वो आपको सबको देखना पड़ेगा कि किसमें क्या चेक हो रहा है, उसके अनुसार तैयारी कैसे करनी है, कितना टाइम देना है सब चीज़ को। उसके बाद में ये जनरेटिविटी आपका टेकन केयर ऑफ होगा। अब आते हैं प्रीलिम्स वाले स्टेज पे। ब्रीफली गिविंग यू सम आइडिया कि कहाँ से, क्योंकि प्रीलिम्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रीलिम्स वाला आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, और ओवरऑल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है। बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे इन योर बिहेवियर, इन योर एटीट्यूड, तब जा करके ये एग्जामिनेशन आप क्रैक करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट के बाद मत देना, एज आई सजेस्ट 5-6 अटेम्प्ट दे करके पूरी लाइफ को वेस्ट करके, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि आप पूरे यूथ बर्बाद करके एक कोई चीज़ अचीव करो, फिर वहाँ जाके पता चले कि यार इतनी बड़ी चीज़ तो थी नहीं। दैट इज हाउ इट हैपन्स। तो हम देखते हैं अभी आपका प्रीलिम्स का स्टेज। देखो प्रीलिम्स का जो स्टेज है, एज आई टोल्ड यू, फोकस,
how can you focus on a certain topic will be checked.